I really felt like seeking medical help because my mental condition was not good. Show your monthly earning from YouTube with screenshots. What do you think about YouTuber drama? So this is my May का income. I was so pissed off at that moment. एक तो ये बंदी ने मेरा SD कार्ड चुरा के गई. Yes, I have had a very bad experience with a YouTuber जो अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है. आई विल नेवर टैग दोज यूट्यूबर्स एंड क्रिएट अ ड्रामा आउट ऑफ दैट. Hey guys, this is Pooja Bera and welcome back to my channel. I hope you guys are doing great and staying safe at home. So for today's video, I'll be doing a spicy Q&A. I have asked you guys to drop in some spiciest questions on my community post which I posted recently, and to my surprise, I've received a lot of spicy questions. This is going to be a very masaledar video, so make sure you guys grab a snack and watch this video till the end, and make sure you guys like, comment, share, subscribe, and also press the little bell icon. And without a further ado, let's get into this video. Alright, so I've already noted all the questions in my cute little notebook and I would be answering one by one. By the way, I've already done similar tag in the past. In case you guys are interested, I'll make sure to link the playlist in the description box below or either in the iCard. ये वीडियो होने के बाद तुरंत वो वीडियो देख लेना. Now let's begin up with our first question. Which YouTuber you think is very irritating? Of course, I'm not going to take names, but हाल ही में ना I have seen a lot of YouTubers doing drama or playing a victim card on their channel, which I find very irritating, and that is the reason why I have unsubscribed a lot of YouTubers जिनको मैं पहले देखना पसंद करती थी. Next thing is, how different is life than one shown on the camera? ऑफ कोर्स कैमरा पे अभी आपको लगता रहेगा मेकअप वेकअप किया है, कितने हाई फंडू कपड़े ये पहनती है, बट रियल लाइफ में अगर आप देखोगे तो आई एम नॉट डॉल्ड अप जस्ट लाइक दिस. अगर आप मुझे कहीं बाहर जाते हुए देखोगे तो यू वुड सी मी इन नो मेकअप. ओके, तो वीडियो में दिखता है ये जो ग्लैमरस लाइफ, दैट इज़ नॉट हाउ आवर लाइफ इज़. लेट्स से कि मैं एक रील वीडियो भी शूट कर रही हूँ, 30 सेकेंड का वीडियो है, बट अगर जिन्होंने मेरा बिहाइंड द सीन्स देखा होगा उनको पता होगा मेरा स्ट्रगल. आई पुट लाइक द एंटायर डे मेकिंग अ 30 सेकेंड का रील विच इज़ हार्ड टू बिलीव, बट येस आई डू दैट जस्ट फॉर यू गाइज. एंड ऑफ कोर्स आपको ऐसा लगता रहेगा मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, स्टिल आई एम मेकिंग दिस वीडियो पुटिंग अ स्माइल ऑन द फेस. ऐसा कुछ भी नहीं है. देयर हैज़ बीन अ टाइम आई हैव cried a lot. I have undergone a lot of stress. I really felt like seeking medical help because my mental condition was not good. So that's that. This is what you don't get to see on camera, but yeah, आज ये वीडियो निकल ही गया है तो सोचा शेयर ही कर दूँ. What do you think about negative comments? I think that is the only way a creator gets to know कि of course तुम्हारा content में कुछ तो बात है कि people have got so much time to write down such negative comments. शायद तुम्हारा सक्सेस लोगों को देखा नहीं जा रहा है and all of that. So yeah, negative comments is one way to know that yes, you are doing well, and I'm glad I get few negative comments because that acknowledges me that yeah, I exist. Do you think shorts will affect long video creators, podcasts, etc? I think it will affect because आजकल ना लोगों के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता. They would prefer a crisp video. जिनको फन एंटरटेनमेंट काइंड ऑफ वीडियोस देखना पसंद आता है would definitely choose shorts over a long video. What you guys choose? Do let me know in the comments down. Which one will you choose? Less subscribers with loyal fan base or more subscribers with a toxic fan base? Oh my god, this is such a deep question, but of course the answer is pretty clear, pretty simple for me. I would always prefer less subscribers but a loyal fan base. I always need loyal people in my life. There is no place for toxic fan base in my life. So if you're comfortable, show your monthly earning from YouTube with screenshot. I know काफ़ी सारे यूट्यूबर्स स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं ऑन यूट्यूब. लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट होता है यार ये यूट्यूबर्स इतने वीडियोस बनाते हैं, शायद वो लाखों में कमाते हैं एंड ऑल ऑफ दैट. बट आई एम गोइंग टू burst out this myth because I am a small creator and मैं कितना कमाती हूँ. I'll insert a
screenshot right here for you guys to know. Let me open YouTube Creator Studio जिसमें आपको मेरा इनकम पता चल जाएगा कि लास्ट मंथ मैंने कितना कमाया था. So this is my May का इनकम. I have received only $13.23. You guys कैलकुलेट करो अभी जाके गूगल करके, यू विल गेट टू नो. मेरे को बहुत ही चिंदी अमाउंट मिलता है फ्रॉम यूट्यूब एंड आई हैव स्पोकन अबाउट दिस इन लॉट ऑफ माई वीडियोज़ इन द पास्ट. कोई बिलीव नहीं करता था बट अभी मैंने प्रूफ दिखा दिया. तो यू गाइज नो जो लोग बड़े क्रिएटर्स हैं दे आर द ओनली वंस हु अर्न फ्रॉम यूट्यूब एडसेंस. सिंस आई हैव नॉट ग्रोन दैट मच, सो दिस इज़ वॉट आई गेट आफ्टर पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट. बट स्टिल हार नहीं मानना है. Even if your subscribers are not increasing, then why are you making videos? Can YouTube pay you more than your job? Of course, अभी मैंने screenshot दिखा के आपको बता ही दिया कि YouTube doesn't pay me that much. My job pays me way more better than what YouTube does. YouTube के income से मैं कुछ भी नहीं कर सकती. You guys know my subscribers are not increasing. The reason has to be, of course, me not consistently uploading videos, or maybe you guys are not engaging that much on my videos. So अब तक जिसने भी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर नहीं किया है, go ahead do that. Support this small creator by इतना छोटा सा एक मूव करके, and that would definitely mean a world to me. The next question is, have you done a collab with any YouTuber in the past and got in fight? Oh my god, it's going to be a story time for you guys now. Yes, I have got into a fight and the fight was so nasty. It was all over the Instagram. So basically ना, I guess 1 या 2 साल पहले there is one YouTuber, of course I'm not gonna name her, उसने मुझे अप्रोच किया था फॉर कोलैब. उसके सब्सक्राइबर्स मेरे से ना काफ़ी कम थे. अब पकड़ लो लाइक 1/4 सब्सक्राइबर्स, उतने सब्सक्राइबर्स थे. उस वक्त मेरे पास 12K सब्सक्राइबर्स थे. ओके, आई चेक आउट हर चैनल. आई फाउंड ओके शी मेक्स अ लॉट ऑफ गुड कॉन्टेंट. even though she has less number of subscribers, but still I'll collab with her. This is what I thought. Okay, now this YouTuber was from Mumbai and we mutually decided कि I'll come to her place for this collab shoot and all of that. ठीक है, and where I would be carrying my camera, tripod, everything. She is not going to carry anything. It's me who is going to take so much of burden and reach her place and do the collab right there. मुझे लगा कि शायद एक दिन में collab shoot हो जाएगा, बट जब हम collab करने बैठे it was taking a lot of time. जब हम शूट कर रहे थे, शूट के बीच में ना SD कार्ड फुल हो गया था. सो हमने सोचा कि चलो यार PC में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, बट उसका PC इतना ज़्यादा खटारा था ना, सॉरी टू से दैट, बट SD कार्ड से कंप्यूटर में जाने के लिए वो डेटा इट वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम. मतलब लाइक 2-3 घंटे तो ऐसे ही बीत चुके थे बट फिर भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ था. ऑलरेडी मेरे को बहुत लेट हो चुका था. 3.5 घंटे ट्रैवल करके मैं उसके घर पे पहुंच पाई थी. सो इट वॉज अ बिग हेक्टिक जॉब फॉर मी. ऑल्सो आई वॉज गेटिंग लेट. तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम मॉम कि भाई तू जल्दी घर पे आ जा. मैंने जाने से पहले आई टोल्ड हर कि अरे यार अभी तो ट्रांसफ़र हो रहा है SD कार्ड का, अब क्या करें. सो शी सेड कि अरे यार वैसे भी अपना कोलैब तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, वी आर गोइंग टू मीट वंस अगेन. सो जब हम मिलेंगे आई विल गिव यू द SD कार्ड. नाउ यार उस वक्त मैं उतना ज़्यादा कमाती भी नहीं थी, बट आई ट्रस्टेड हर एंड आई लेट माई SD कार्ड स्टे एट हर प्लेस. शी वॉज इवन आस्किंग मी टू लेट माई कैमरा स्टे एट हर प्लेस, क्योंकि शायद बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा मेरे लिए. बट आई वॉज लाइक नहीं मैं कैमरा लेके जाती हूँ, SD कार्ड रहने दे. SD कार्ड यू कैन गिव मी वंस वी मीट अगेन. And surprisingly, when I got back home, you guys know I'm working. Saturday Sunday का टाइम ही मुझे मिलता था for YouTube things. So I told her कि चल यार अभी ये कोलैब का पार्ट जो हमारा रह गया है वो कंप्लीट कर लेते हैं. Why don't you come to my place? Anyways setup and all सब मेरा ही है, so it would be pretty much convenient. मैं वहाँ नहीं जाऊँ और anyways मैं तो एक बार तेरे वहाँ आ गई थी, so why don't you come here? तो उसने पहले हाँ बोल के एंड एट द एंड मोमेंट वो बहुत बहाने मारने लगे. एंड बहाने वो लिटरली लाइक कि मतलब समझ में आए. फिर मैंने क्या सोचा कि मेरा यहाँ पे शूट अटक गया. ऑफकोर्स SD कार्ड मेरा उसके पास था. तो आई टोल्ड हर कि भाई एटलीस्ट तो SD कार्ड कुरियर कर दे, क्योंकि मेरे ना वीडियोस थोड़े अटके पड़े हैं. तो शी स्टार्टेड फाइटिंग विथ मी. मतलब हाउ डेयर यू से दैट दिस, मतलब बहुत नेस्टी हमारा फाइट स्टार्ट हो गया. एंड आई सॉ हर posting about me on Instagram
कि भाई मैं इस बंदे के साथ कोलैब करने वाली थी, बट हमारा कोलैब अच्छा हुआ नहीं, सो देयर वुडंट बी एनी वीडियो। एंड शी लिटरली टैग्ड मी, ओके। उन्होंने पूरा मेरा नेम डिस्प्ले किया ऑन इंस्टाग्राम पोस्ट। आई वॉज सो पिस्ड ऑफ एट दैट मोमेंट। एक तो ये बंदी ने मेरा SD कार्ड चुरा के गई, एंड शी इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ सीन ऑन इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म। सो आई पोस्टेड अ वेरी बिग स्टोरी ऑन माई इंस्टाग्राम कि भाई ये बंदी ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, एंड आई वॉज लिटरली पिस्ड ऑफ, ओके। इट वॉज नॉट अ जोक फॉर मी to give my equipments to her and not get it returned back. So that was a very nasty fight. I was very pissed off. I literally cried at that moment because मेरे लिए YouTube पे consistently post करना was very important at that time because that was my growing phase. And उस बंदी ने मेरे साथ ऐसा किया, so उसके बाद से मैं थोड़े कोलैब करना मैंने बंद कर दिया। And yeah, that's the very nasty story of mine. Any bad experience with any creator or a YouTuber? Yes, I have had a very bad experience with a YouTuber जो अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोना टेक नेम, प्लीज़ डोंट हेट मी फॉर दैट। ये जो यूट्यूबर है वो ना काफ़ी मेरे वीडियोस पे कमेंट करती थी, एंड उन्होंने मेरे को एक बार इंस्टाग्राम पे पिंग कर दिया था, तो हम लोग की बहुत अच्छी बातचीत हुई। तब वो यूट्यूबर उतनी फेमस नहीं थी उस वक्त। आई वॉज इन ए रिकॉग्नाइज स्टेट, ठीक है, लोग मुझे उस वक्त जानते थे। तब ना उस क्रिएटर ने मुझे हेल्प मांगी कि वाई डोंट यू पोस्ट अबाउट वन ऑफ माई वीडियो ऑन योर कम्युनिटी टैब, यू हैव अ रियली गुड सब्सक्राइबर बेस ऑन यूट्यूब, एंड इन टर्न सिंस आई हैव अ गुड follower base on Instagram, I would promote about your channel on my stories. So I was like कि यार तुम मेरे बारे में पोस्ट ना भी करो तो भी चलेगा, आई पोस्ट अबाउट यू। बट शी वॉज लाइक कि नहीं, यू आर रियली स्वीट एंड ऑल ऑफ दैट, तो मैं तुम्हारे बारे में ज़रूर पोस्ट करूँगी। सो मैंने उनसे कहा कि यार मैं तो थोड़ी भुलक्कड़ हूँ, प्लीज़ रिमाइंड मी अबाउट दिस पोस्टिंग स्टफ एंड ऑल। उन्होंने मुझे रिमाइंड भी किया। I posted about her, wrote a lot of good things about her. I have asked my audience to subscribe to her channel. But then, जब उनकी बारी आई, she didn't post it about me on her Instagram story, which was a bit disappointing because you kind of trust people. तो मेरा ना trust काफ़ी ज़्यादा break हुआ है. I have had a lot of bad experience. इतना ही नहीं, personal पे हमारी बातचीत होती थी, but after some days I saw she unfollowed me on Instagram, and that was literally shocking for me. उनका पर्सनल नंबर मेरे पास है, we talk about YouTube and all of those things. आप मुझे जानते हो, ठीक है, एंड देन वाई हैव यू अनफॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम जस्ट बिकॉज आप अभी इतना ग्रो हो चुके हो, यू आर राइट नाउ अ बिट फेमस, सो यू विल डू दिस थिंग विथ मी। सो दैट वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। उससे यही चीज़ पता चल जाता है कि ये जो यूट्यूबर जिसके साथ मेरा इतना बैड एक्सपीरियंस रहा है, शी इज़ वेरी वेरी सेल्फिश। जहाँ पे उसको अपना फ़ायदा दिखेगा वो वही जाएगी। मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा है, एंड मैं बिल्कुल भी कोई भी हिंट्स नहीं दूंगी, क्योंकि मैं एक 1% हिंट भी दे दूँ ना तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस यूट्यूबर के बारे में बात कर रही हूँ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द हाईएस्ट अमाउंट दैट अ ब्रांड हैव एवर पेड यू। सो I remember I was working with Hike, and उस वक्त I was paid 30K for a brand collab, and that was the highest amount I think I have received so far from a brand collab. Next is, what do you think about the kind of relationship Aditya and Mridul Sharma have? I think they are very cute. I personally love their chemistry and all of that. I know कुछ तो खिचड़ी पक रही है, बट दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन मृदुल, इसको कब वो डिस्क्लोज करना है। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड कि कब वो अनाउंस करेगी, बिकॉज आई हैव सीन हर गिविंग हिंट्स ऑन हर इंस्टाग्राम पोस्ट। सो या आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन when she makes it official. Next question is that ever happened that a brand betrayed you and denied to give you a payment? Yes, हुआ था मेरे साथ। एक फैशन ब्रांड ने ऐसा किया था, मेरे से पूरा वीडियो वगैरह बनवा के लिया, took my video also, misused my videos also, but मुझे पेमेंट नहीं मिला। एंड तब से मैंने सीख लिया कि भाई यार अनलिस्टेड लिंक दो, 50% पेमेंट ब्रांड से पहले ही ले लो, अनलिस्टेड लिंक भेजने से पहले, ताकि यू विल नॉट बी इन अ लूजिंग स्टेट।
Next is, what do you think about YouTuber drama where a small YouTuber just expose a bigger YouTuber? First of all, ये जो statement किसी ने भी जो ये question frame किया, this is very wrong. I don't think so कि किसी ने किसी को expose किया है. बाहर से देखने पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना ऑडियंस ने सबसे ज़्यादा गैसलाइट किया है एंड जिसके वजह से दो यूट्यूबर्स का रिलेशनशिप ख़राब हुआ है. पर्सनली मेरे साथ भी ये सेम थिंग हुआ था. देर वर अ लॉट ऑफ कॉमेंट्स सेइंग कि आई एम कॉपिंग रम्या वासुदेव, आई एम कॉपिंग प्रगति वर्मा, आई एम कॉपिंग गोपाली एंड व्हाट नॉट. लिटरली लॉट ऑफ कॉमेंट. आई वॉज कॉपिंग सोनिया गर्ग इवन. मतलब ऐसे भी लोग कॉमेंट करते थे बट आई रिप्लाइड देम बैक कि कैसा होता है ना, लेट्स से एक यूट्यूबर ने ऐसा वीडियो किया 5 मिनट मेकअप चैलेंज एंड उसके बाद मैं भी वो वीडियो कर रही हूँ, ठीक है. तो लोगों को ऐसा लगता है आई एम कॉपिंग दैट यूट्यूबर. बट द थिंग इज यूट्यूब कम्युनिटी में लेट्स से इफ यू आर गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम समवन देन यू possibly give a credit either in the description box or you can speak about it in the video itself. I've always done that, okay? So जब कभी भी कोई मेरे ऊपर ये allegations लगाता है, make sure I reply them कि भाई देखो I got inspired from her video and I've always made sure to give them credit. I don't think so I'm copying anyone. It's just that I'm getting inspired and creating my own version of that. सो या जिस वक्त मैं क्रेडिट ना दूँ किसी यूट्यूबर को उस वक्त आप लोग मुझ पे उंगली उठा सकते हो. दिस वॉट माई रिएक्शन वॉज. आई विल नेवर टैग दोज यूट्यूबर्स एंड क्रिएट अ ड्रामा आउट ऑफ दैट. हु इज़ योर यूट्यूबर क्रश? आई डोंट थिंक सो आई डू हैव एनी यूट्यूबर क्रश एट द मोमेंट. आई बिंज वॉच गर्ल्स के वीडियो. मृदुल शर्मा, हेली वेद, सोनिया गर्ग, इनके वीडियोज़ मैं काफ़ी ज़्यादा देखती हूँ. सो आई डोंट गेट एनी टाइम टू वॉच मेल यूट्यूबर का वीडियो. सो या आई डोंट हैव एनी क्रश एट द मोमेंट. व्हाट डू यू थिंक अबाउट क्रिएटर्स डिक्लेयरिंग शाउट आउट डेज ऑन इंस्टाग्राम? डू यू रियली थिंक दैट हेल्प समवन टू ग्रो? ओह माई गॉड, दिस वेरी स्पाइसी क्वेश्चन. मेरा आंसर थोड़ा अलग है, थोड़ा हटके है. आई एम नॉट श्योर इफ़ यू गाइज वुड लाइक दिस आंसर ऑफ माइंड. बट यार हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं एंड आप लोग इतने ज़्यादा अंधे हो जाते हो कि आपको अदर साइड नहीं देख पाते हो. बट बीइंग अ क्रिएटर आई सॉ दैट साइड, ठीक है. देयर वॉज वन क्रिएटर ओके ऑन इंस्टाग्राम जो कहती थी कि आप ये हैशटैग यूज़ कर लो एंड आई विल गिव यू अ शाउट आउट ऑन माई स्टोरीज. देयर वुड बी अ शाउट आउट डे. अभी इसमें हुआ क्या, ठीक है. वो एक स्टोरी डाला करती थी क्रिएटर सपोर्टिंग क्रिएटर, आप फॉलो कर दो इस क्रिएटर को एंड ऑल ऑफ दैट. आई पर्सनली थिंक लेट्स से आप आपके ऑडियंस को पूछ रहे हो कि भाई आप इस क्रिएटर को फॉलो कर लो, राइट. बट क्रिएटर सपोर्टिंग क्रिएटर ये हैशटैग आपने क्रिएट किया है, राइट. बट व्हेन आई सी, मतलब ठीक है मैं मानती हूँ कि वो शाउट आउट देती है स्टोरीज पे, बट व्हेन आई सॉ हर फॉलोइंग शी इज़ नॉट इवन फॉलोइंग दैट क्रिएटर. तो ये जो हैशटैग आपने क्रिएट किया है क्रिएटर सपोर्टिंग क्रिएटर, इसका क्या फ़ायदा हुआ? यू आर जस्ट आस्किंग योर ऑडियंस टू फॉलो देम, जबकि आप खुद ही उस क्रिएटर को फॉलो नहीं कर रहे हो इवन दो यू नो दैट क्रिएटर इज़ क्रिएटिंग सो मच गुड कॉन्टेंट. सो दैट इज़ वेरी बायस्ड नेचर ऑफ योर्स. और इसके पीछे का पिक्चर आई लेट यू नो, ठीक है. जब कोई क्रिएटर खुद का हैशटैग क्रिएट करता है एंड उस पर बहुत सारे लोग आपको टैग करते हैं तो वो जो इंगेजमेंट रेट है क्रिएटर का बढ़ता है. ऑफ कोर्स बहुत लोग आपके पोस्ट पे लाइक कमेंट करते हैं, ठीक है, एंड आपका हैशटैग यूज़ करते हैं तो ऑफ कोर्स आपका जो रीच है ऑन इंस्टाग्राम वो बढ़ जाता है. एंड उसके टर्न पे आप सिर्फ एक स्टोरी डालते हो एंड कितने सारी अगर आप स्टोरीज डालोगे तो आई डोंट थिंक सो एनीबडी केयर अबाउट दो स्टोरीज. कोई भी उस क्रिएटर को जाके फॉलो नहीं करेगा जब आप इतने सारे स्टोरीज डालते हो एंड पर्सनली आप खुद भी उन्हें फॉलो नहीं कर रहे हो. सो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ सेंस इट इज़ मेकिंग टू गिव शाउट आउट टू देम व्हेन यू आर क्रिएटिंग दिस हैशटैग क्रिएटर सपोर्टिंग क्रिएटर एंड आप खुद ही सपोर्ट नहीं कर रहे हो. आई थिंक दैट्स प्रीटी शेडी अकॉर्डिंग टू मी. इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर का फ़ायदा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एनी 3 रीजन्स दैट एनीवन शुड सब्सक्राइब टू योर चैनल. आई हैव अ लॉट ऑफ रीजन. फर्स्ट बीइंग इज़ बहुत कम यूट्यूबर्स होते हैं जो
ऑडियंस के हर एक कमेंट को रिप्लाई करते हैं एंड आई थिंक आई एम वन ऑफ देम हु हैव ऑलवेज मेड श्योर टू रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स, हार्ट आउट ऑल द कमेंट्स, मेड बी अ नेगेटिव कमेंट, मैं उन्हें जवाब ज़रूर देती हूँ. सो दैट वे आई थिंक आई एम क्रिएटिंग अ नाइस कम्युनिटी by replying to the comments. That's why you should subscribe. Second thing, I post such kind of content which you guys like. In case you guys have been following me for a really long time, you guys would know मैं हमेशा community post में पूछती रहती हूँ what kind of content would you like to see, and of course I work hard to come up with such contents which you like. Also my content is very diverse. You'll not only see fashion content, beauty content, there would be a lifestyle content as well, funny content, challenge videos and all of that. So I think that makes me different from other creators, and that is why you should subscribe to my channel. Next is love your videos. Have you ever met twinses in real life? How are they? Are they really cute and sweet? First of all, thank you so much. Yes, I've met twinses in real life. I have met them in YouTube space and also while doing a collab with them. I personally felt they are very sweet and very professional. In fact, I do have their personal numbers and we chit chat a lot about YouTube and all of those things. They are really sweet. So yeah, that is it for today's video. I hope you guys had fun watching this masaledar video where I've spilled off so much tea. And yeah, that is it for today's video. I'll see you guys next time. Till then, take care. Bye bye.